Hello everyone, welcome back. Hope you are doing good. In our previous video, we covered a lot of essential MySQL command. But today we are going to discuss one of the important command of MySQL, that is select command. We are gonna explore select command to retrieve specific records as well as all the records of the table. We will even get introduced to write conditions using logical as well as relational operators. Along with these operators, we are gonna discover how to use in and between operator with the select command. And at last, we will discuss pattern matching. So without further delay, let's get started. Till now, we studied different commands like how to create table, insert data into it and how to update the data. Now it's time to proceed with the select command. So what's the use of select command? It is used to retrieve data from the table. We can display data using select command. हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं जिसमें ह्यूज डेटा होता है, थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं, बट एवरी टाइम वी डोंट नीड ऑल द रिकॉर्ड्स. So to retrieve the specific records or specific data from the table, we use select command. So here is the syntax. First of all, we have to write select followed by the column list. हम यहाँ पे एक कॉलम या फिर मोर देन वन कॉलम मेंशन कर सकते हैं which are separated by comma. After that we are going to write from table name and at last we have to write the where clause with the condition. This where clause is optional. If you have condition you can mention it, otherwise you can skip it. In the first example we are gonna display only one field, but in the second example we will see how to display more than one columns. If you want to work with any table, सबसे पहले तो हमें डेटाबेस को एक्सेस करना होता है जो हम यूज कमांड से कर रहे होंगे. हम वर्क कर रहे हैं EMP टेबल के साथ जिसमें ये सारा डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड है. Now using select command we are gonna display only one column from this table. For that we are going to write select, then column name and from table name. Write semicolon and press enter. We can see here only one column EMP ID is getting displayed. In the same way you can display more than one column. So the first column name is EMP ID and the second is employee name. After that we have to write the table name from EMP. Write semicolon and press enter. एंड देयर यू हैव इट. हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने दो कॉलम्स को डिस्प्ले किया है, दो फील्ड्स को डिस्प्ले किया है. इन द सेम वे विच एवर कॉलम्स यू नीड यू कैन मेंशन हियर. हम सिलेक्ट कमांड के साथ जो भी कॉलम नेम्स यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं वो उसी ऑर्डर्स में प्रिंट होते हैं. सो वी कैन रीऑर्डर देम. लेट्स एग्जीक्यूट दैट क्वेरी 2. हम यहाँ पे पहले एम्प्लॉय नेम प्रिंट करेंगे फॉलोड बाय एम्प्लॉय आईडी. फिर हमें लिखना है फ्रॉम नेम ऑफ द टेबल इज EMP. आउटपुट से ये तो क्लियर ही है. हमने यहाँ पे EMP नेम लिखा था सबसे पहले, तो वो फील्ड डिस्प्ले हो रहा है, उसके बाद EMP ID. सिलेक्ट कमांड में हमने देखा हम मेंशन करते हैं कॉलम लिस्ट. बट व्हाट इफ यू वांट ऑल द कॉलम्स, देन यू कैन यूज दिस स्टार ऑपरेटर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एस्ट्रिक. यू कैन कॉल दिस स्टार ऑपरेटर एज ऑल ऑल्सो. तो इस क्वेरी का फॉर्मेट कुछ इस तरह होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय और आउटपुट में हमें पूरा डेटा मिल रहा होगा टेबल का. लेट्स प्रैक्टिस दिस क्वेरी 2. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम दैट इज एम्प्लॉय. With this command we are getting the complete table. Now let's move ahead with one more variation of select command. We can use distinct keyword. इससे हम eliminate करते हैं duplicate data. हमने जो EMP टेबल क्रिएट किया है उसमें जो सिटी फील्ड है हम वहाँ पे देख सकते हैं कुछ डुप्लीकेट डेटा है. बेंगलोर 2 टाइम्स है, पुणे भी 2 टाइम्स है. तो अगर हमें ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स रिमूव करने हैं, एलिमिनेट करने हैं, वी कैन यूज डिस्टिंक्ट कीवर्ड अलॉन्ग विद दैट कॉलम नेम. It's time to execute the same query. Select distinct, the column name is city from EMP. हम देख सकते हैं यहाँ पे सारे सिटी सिर्फ एक ही बार प्रिंट हो रहे हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज एलिमिनेट हो गई है. हमने सिलेक्ट क्वेरीज के कुछ वेरिएशंस तो स्टडी कर लिए हैं जिसमें हमने वेयर क्लॉज यूज नहीं किया था बिकॉज इट इज ऑप्शनल. नाउ लेट्स चेक आउट हाउ वी कैन यूज द सिलेक्ट कमांड विद वेयर क्लॉज. हम वेयर क्लॉज का यूज़ करते हैं जिसके साथ हम कंडीशन प्रोवाइड करते हैं. जो रोज उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे वही डिस्प्ले होंगे. So with the where clause we are applying some criteria. The syntax will be same.
but here we are going to add the where clause along with the condition. Before proceeding with the where clause and check how to write the condition, we are gonna explore the different options which are available to design that condition. हम कंडीशन लिखने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं. रिलेशनल ऑपरेटर हम यूज करते हैं वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए. सो MySQL में भी देयर आर 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स. दिस इज इक्वल टू ऑपरेटर और ये है नॉट इक्वल टू. Other operators are exactly same like other programming languages. Greater than, less than, greater than, equal to and less than equal to. Let's use one of the relational operator in one query. What is our requirement? We have to display all the records whose city is Bangalore. उसके लिए हमारी query कुछ इस तरह होगी. Select star from employee where city equals to Bangalore equals to operator हमें ऐसे लिखना है. Let's practice the same query here. Select star from table name. Instead of star, if you want specific columns, you can mention it here. After that, we have to write the condition with the where clause, where city equals to Bangalore. लेट्स चेक आउट द आउटपुट. हम देख सकते हैं हमें ऐसे ही रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं एम्प्लॉयज के जिसकी सिटी बैंगलोर थी. MySQL में कमांड्स तो केस सेंसिटिव नहीं होते, लेकिन ये जो डेटा हमें कंपेयर करना है ये एग्जैक्टली सेम ही आपको लिखना है. बैंगलोर कॉलम का डेटा टाइप वैरचर था, इसलिए हमने इसे सिंगल कोट में मेंशन किया है. अगर इंटीजर या डेसिमल है तो हमें सिंगल कोट नहीं लिखना है. So in this way, check out the working of the other operators too. To design condition, we saw how we can use the relational operator. In the same way, we have logical operators too. लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज हम तब करते हैं जब हमें एक से ज्यादा कंडीशंस को कंबाइन करना है या फिर कनेक्ट करना है. These 3 logical operators are similar to the other programming languages. First operator है or, the next is and the last one is not operator. We are well familiar with the working of these operators. Let me revise once. In case of or, we will get the output true if any of the input is true. But in case of and, we will get the output true if both the inputs are true. These two operators are binary operator but not is a unary operator. It negates the value. If it is true, it will become false, and if it is false, it will become true. Let's try to understand the usage of logical operator. So here is our question. हमें सारे एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड डिस्प्ले करने हैं, बट व्हाट्स द कंडीशन? उनकी सिटी बैंगलोर या फिर नागपुर हो सकती है. इट मीन्स हमें ऐसे एम्प्लॉयज़ चाहिए जिनकी सिटी बैंगलोर या फिर नागपुर है. तो हमारी क्वेरी कुछ इस तरह होगी. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी इक्वल्स टू बैंगलोर. हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं लॉजिकल और. सो पहले हमने मेंशन कर दिया सिटी इक्वल्स टू बैंगलोर, फिर और ऑपरेटर के साथ हम मेंशन कर रहे हैं सिटी इक्वल्स टू नागपुर. इस तरह हमने और ऑपरेटर का यूज़ करते हुए 2 कंडीशंस को कंबाइन किया है, कनेक्ट किया है. हम इस क्वेरी को भी MySQL में एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, फिर हमें लिखना है वेयर कंडीशन, वेयर सिटी शुड बी बैंगलोर. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. और हमारी सेकेंड कंडीशन है कि सिटी नागपुर भी हो सकती है, तो हम वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे. लेट्स एग्जीक्यूट दिस. आउटपुट से हम ये समझ सकते हैं कि हमें सिर्फ ऐसे ही एम्प्लॉय मिल रहे हैं जिसकी सिटी एक तो बैंगलोर है या फिर नागपुर है. हम MySQL में और ऑपरेटर को विद दिस 2 पाइपिंग सिंबल भी लिख सकते हैं. एंड हियर यू गो, हमें सेम आउटपुट ही मिल रहा है. इन द सेकेंड एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू यूज द लॉजिकल ऑपरेटर एंड. तो हमारा क्वेश्चन क्या है? हमें ऐसे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करने हैं एम्प्लॉयज़ की जिसकी सिटी पुणे होनी चाहिए, बट उसकी सैलरी भी उसके साथ ग्रेटर दैन 21 होनी चाहिए. सो इन दिस केस हमें ये बोथ द कंडीशन सेटिस्फाई करने हैं. दैट्स वाई वी आर गोइंग टू यूज द एंड ऑपरेटर. तो हमारी क्वेरी कुछ इस तरह होगी. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी इक्वल्स टू पुणे एंड सैलरी शुड बी ग्रेटर दैन 21,000. Let's try to execute the same query here. Select star from employee and the where condition we are going to write it now. तो first condition है city should be Pune and the second condition is salary should be greater than 20,000. For that we are going to use logical operator and. हमारा field name है salary और हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे एक रिलेशनल ऑपरेटर टू कंपेयर द वैल्यू. इट शुड बी ग्रेटर दैन 21,000. सो अकॉर्डिंगली हमने कंडीशन लिख ली है. लेट्स चेक आउट द आउटपुट. हमारे पास एक रिकॉर्ड ऐसे मिल रहा है जिसमें एम्प्लॉय की सिटी पुणे है और सैलरी ग्रेटर दैन 21,000 है.
लेट मी डेमोन्स्ट्रेट द थर्ड लॉजिकल ऑपरेटर नॉट। तो हम चेक कर लेते हैं हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। वी हैव टू डिस्प्ले ऑल द एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स हु सिटी इज अदर देन नागपुर, मतलब सिटी नागपुर नहीं होनी चाहिए। हमें निगेट करना है तो हम यूज कर रहे होंगे नॉट ऑपरेटर। क्वेरी को इस तरह हम लिख रहे होंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर। हमारी सिटी नागपुर नहीं होनी चाहिए तो हमने नॉट ऑपरेटर अप्लाई कर दिया सिटी पे और हम चेक कर रहे हैं विद द रिक्वायर्ड वैल्यू। लेट मी डेमोन्स्ट्रेट दिस क्वेरी ऑल्सो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। लेट्स राइट द वेयर क्लॉज विद द कंडीशन। हमारी सिटी नागपुर नहीं होनी चाहिए तो हम अप्लाई कर रहे हैं नॉट ऑपरेटर ऑन द कॉलम नेम सिटी। फिर हम उसे कंपेयर कर लेंगे विद द रिक्वायर्ड वैल्यू जो है नागपुर। लेट्स चेक आउट। यहाँ पे वो सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं जिनकी सिटी अदर देन नागपुर है, लेकिन ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं आया जिसकी सिटी नागपुर है। Let's continue our discussion of the select command with some more variation. We are going to use between operator. हम between operator का यूज कर सकते हैं जब हमें एक रेंज मेंशन करनी होगी। जो रेंज हम प्रोवाइड करेंगे उसमें से between operator वैल्यू सिलेक्ट कर रहा होगा। तो हमें टेबल से ऐसे रिकॉर्ड्स मिल रहे होंगे जो उस रेंज को सेटिस्फाई करते हैं। हम इसका सिंटेक्स समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हमें लिखना है सिलेक्ट, उसके बाद फ्रॉम टेबल नेम तक तो हमारी क्वेरी सेम ही है। हम जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं वेयर क्लॉज में। वेयर क्लॉज के बाद हम मेंशन कर रहे होंगे कॉलम नेम जिसके लिए हम ये वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे होंगे। कॉलम नेम के बाद हम लिख रहे हैं बिटवीन ऑपरेटर। उसके बाद हम स्टार्टिंग वैल्यू रेंज की और एंडिंग वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे। बोथ वैल्यू 1 और वैल्यू 2 रेंज में इंक्लूसिव है। इसे हम कैसे यूज करेंगे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हमें प्रिंट करना है ऐसे रिकॉर्ड्स जिसका एम्प्लॉय ID 101 से लेके 104 तक है। तो ये हमारी क्वेरी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर एम्प्लॉय ID बिटवीन 101 एंड 104। तो सेम क्वेरी को हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, सिलेक्ट फ्रॉम EMP। अब हम लिख लेते हैं वेयर क्लॉज, वेयर EMP ID बिटवीन 101 एंड 104। इस तरह हमें ऐसे रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं जिनका एम्प्लॉय ID 101 से लेके 104 तक है। तो अगर हमें रेंज स्पेसिफाई करना है तो हम बिटवीन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। बिटवीन ऑपरेटर का रिवर्स ऑपरेटर भी हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज नॉट बिटवीन। इफ वी मॉडिफाई द सेम क्वेरी विथ नॉट बिटवीन ऑपरेटर, हमें ऐसे रिकॉर्ड्स मिल रहे होंगे जो इस रेंज को सेटिस्फाई नहीं करते। लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट नॉट बिटवीन ऑपरेटर। तो हमने उसके लिए लिख लिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। नाउ लेट्स राइट द वेयर क्लॉज, वेयर EMP ID नॉट बिटवीन, और रेंज तो हम कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। हम सेम रेंज ही प्रोवाइड कर रहे हैं बिटवीन 101 एंड 104। इन दिस वे हमें ऐसे रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं जिनका एम्प्लॉय ID इस रेंज में नहीं है। तो नॉट बिटवीन ऑपरेटर इज द रिवर्स ऑफ बिटवीन ऑपरेटर। It's time to proceed and let's check out some more operators that we can use with the select command. The operator which we are going to study is in operator. We use in operator to specify the list of values. अगर हमारे पास कुछ list of values है और उसी में से हमें records मैच करवाने हैं तो हम in operator का यूज कर सकते हैं। बिटवीन ऑपरेटर के साथ तो हमने देख ली कि रेंज कैसे मेंशन करते हैं, लेकिन अगर स्ट्रिंग वैल्यू है और हमें वो लिस्ट प्रोवाइड करना है तो हम इन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। ये उसका सिंटेक्स है। हमें यहाँ तक तो सेम ही लिखना है, सिर्फ हम चेंज कर रहे होंगे वेयर क्लॉज के साथ। वेयर के बाद हम लिखेंगे कॉलम नेम जिस पे हमें इन ऑपरेटर अप्लाई करना है और हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे होंगे लिस्ट ऑफ वैल्यूज। कोई भी रिकॉर्ड अगर इस लिस्ट में दिए हुए वैल्यूज को सेटिस्फाई करता है तो वो डिस्प्ले हो रहा होगा। इसे समझने के लिए हम एक क्वेरी कंसीडर कर लेते हैं। हमें इस एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड डिस्प्ले करने हैं जिनकी सिटी दिए गए लिस्ट में से ही होनी चाहिए। लेट मी डेमोन्स्ट्रेट दिस क्वेरी ऑल्सो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। नाउ लेट्स राइट द वेयर क्लॉज, वेयर सिटी इन। नाउ वी हैव टू प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ द सिटीज। क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद आउटपुट से हम ये समझ सकते हैं कि हमें सिर्फ ऐसे रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं जिनकी सिटी हमने जो लिस्ट मेंशन की थी उसमें से कोई एक है। सो विद इन ऑपरेटर वी कैन स्पेसिफाई द लिस्ट ऑफ द वैल्यूज।
हमने बिटवीन ऑपरेटर जब स्टडी किया था, हमने देखा नॉट कनेक्ट करके हम उसका रिवर्स बना सकते हैं। इसी तरह इन ऑपरेटर के साथ भी हम नॉट इन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। नॉट इन ऑपरेटर से हमें ऐसे रिकॉर्ड्स मिल रहे होंगे जो स्पेसिफाइड लिस्ट को मैच नहीं करते हैं। हम इस सेम क्वेरी को मॉडिफाई करके देख लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, लेट्स राइट द वेयर क्लॉज, वेयर सिटी नॉट इन। नाउ लेट्स राइट द सेम लिस्ट ऑफ सिटीज। हमारे टेबल में एक ही रिकॉर्ड था जो इस सिटी को बिलोंग नहीं करता, तो हमें वो डिस्प्ले हो रहा है। होप यू अंडरस्टूड द यूज ऑफ नॉट इन ऑपरेटर। Here we applied not in on the city field. You can try with other fields also. Select command is very important. Now let's check out what else we can do with it. हम पैटर्न मैचिंग भी कर सकते हैं with the select command. Let's check out how to do it. आप पैटर्न मैचिंग तो जानते ही होंगे। हम पर्टिकुलर पैटर्न स्ट्रिंग पे कंपेयर करते हैं। In MySQL for pattern matching we have two operators. The first is % and the second one is underscore. परसेंट साइन के साथ हम वन और मोर कैरेक्टर्स को मैच कर सकते हैं, लेकिन अंडरस्कोर से हम सिंगल कैरेक्टर ही मैच कर सकते हैं। इनका यूज हम एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है JA देन %, तो हमें ऐसी स्ट्रिंग मिल रही होगी जिसकी स्टार्टिंग JA हो बट उसके बाद कोई भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। We can use these operators as many times as we want in the string for pattern matching. इस एग्जाम्पल में हम % लिख रहे हैं इन द बिगिनिंग, उसके बाद हमने मेंशन किया है RO, फिर और एक बार हम यूज़ कर रहे हैं %। तो इसका मतलब क्या है, हमें ऐसे स्ट्रिंग चाहिए जिसके बीच में RO हो, बिगिनिंग में कुछ भी हो सकता है और उसके बाद भी कोई भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो इस पैटर्न मैचिंग से हमें कुछ इस तरह का डेटा मिल रहा होगा जिसके सेंटर में हमें कहीं RO मिल रहा होगा, इन द बिगिनिंग कुछ भी हो सकता है और उसके बाद भी कोई भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो जब हमें एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स मैच करने होते हैं, हम % का यूज़ कर सकते हैं। Now let's check out the next operator, that is underscore. अंडरस्कोर एग्जैक्टली सिंगल कैरेक्टर मैच करता है। तो अगर हमने 3 टाइम्स अंडरस्कोर दिया है तो हमें ऐसी स्ट्रिंग चाहिए जिसमें 3 कैरेक्टर्स होंगे। तो इस तरह के नेम्स हमें मिल रहे होंगे जिसमें 3 कैरेक्टर्स है। अंडरस्कोर का यूज़ हम इस तरह भी कर सकते हैं। हमें ऐसे रिकॉर्ड चाहिए जिसमें स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट T हो, बीच में कुछ भी हो सकता है और लास्ट में A हो। हमारे EMP टेबल में कुछ ऐसा एक नाम था, तो ये डिस्प्ले हो रहा होगा। अगर टेबल में ऐसी भी कोई स्ट्रिंग होगी तो वो भी डिस्प्ले हो रही होगी। और इन सब पैटर्न मैचिंग के लिए हम यूज़ करते हैं लाइक ऑपरेटर। तो इसका सिंटेक्स हम देख लेते हैं। यहाँ तक तो हमें सेम ही लिखना है। उसके बाद हम लिख रहे होंगे वेयर क्लॉज। जिस कॉलम पे हमें पैटर्न मैचिंग करना है हम स्पेसिफाई कर रहे हैं वो कॉलम नेम। फिर हमें लिखना है लाइक ऑपरेटर और उसके बाद हमें डिज़ाइन करना है वो पैटर्न हमेशा हम सिंगल कोट में ही दे रहे होंगे क्योंकि ये हम यूज़ करते हैं फॉर स्ट्रिंग वैल्यूज़। इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें ऐसे एम्प्लॉयज़ के डिटेल्स डिस्प्ले करने हैं जिसका नाम Y से स्टार्ट हो रहा है। तो क्वेरी कुछ इस तरह दिख रही होगी। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नेम लाइक Y%। स्टार्टिंग Y है, बाद के कैरेक्टर कुछ भी हो सकते हैं। हम इस क्वेरी को भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। लेट्स राइट वेयर क्लॉज वेयर ई नेम, फिर हमें लिखना है लाइक ऑपरेटर। लेट्स डिज़ाइन द पैटर्न। हमें ऐसे एम्प्लॉयज़ के डिटेल चाहिए है जिनका नाम Y से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारे पास ऐसे कुछ रिकॉर्ड्स है, इसलिए हम इस तरह डिज़ाइन कर रहे हैं। आप अपने डेटा के अकॉर्डिंग पैटर्न डिज़ाइन कर सकते हैं। हमारे EMP टेबल में 2 रिकॉर्ड्स थे जिनका नाम Y से स्टार्ट हो रहा था, तो वो डिस्प्ले हो रहे हैं। आप डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स डिज़ाइन करके इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमने पैटर्न मैचिंग के लिए % यूज़ कर लिया है। नाउ लेट्स ट्राई अंडरस्कोर। सो व्हाट्स द रिक्वायरमेंट, हमें ऐसे एम्प्लॉयज़ चाहिए जिनके नेम में हमें IA एट द एंड ऑफ द नेम मिल रहा होगा। मतलब स्टार्टिंग कुछ भी हो सकती है लेकिन एंडिंग तो ये ही होनी चाहिए। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नेम लाइक, हमने अंडरस्कोर यूज़ किया है वंस, तो ये सिर्फ एक ही कैरेक्टर्स को मैच कर रहा होगा। और लास्ट में हमने लिख दिया IA। लेट्स एग्जीक्यूट द सेम क्वेरी वेयर एम्प्लॉय नेम लाइक, फिर हमें लिखना है
हमारा पैटर्न। तो हमने वंस अंडरस्कोर लिखा है, उसके बाद हम लिख रहे हैं IA। लेट्स चेक आउट। हमारे पास ऐसे रिकॉर्ड्स थे जिसका स्टार्टिंग 1 कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, तो वो मैच हो गया और लास्ट में IA है। आप मोर देन वंस भी अंडरस्कोर मेंशन कर सकते हैं, तो उतने कैरेक्टर्स मैच हो रहे होंगे। लेट्स चेक आउट वन मोर क्वेरी। हम ऐसे एम्प्लॉयज का डेटा प्रिंट करना चाहते हैं जिसके नेम 3 कैरेक्टर्स है, तो हम लिख रहे होंगे वेयर एम्प्लॉय नेम लाइक। हम यहाँ पे अंडरस्कोर 3 टाइम्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये 3 कैरेक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, वो मैच हो गए। हमारे पास ऐसा डेटा था जिसमें इन एम्प्लॉयज़ का नेम 3 कैरेक्टर्स के साथ था। होप आपको यूसेज ऑफ परसेंट एंड अंडरस्कोर समझ में आ गया होगा। आप इसे डिफरेंट पैटर्न के साथ प्रैक्टिस कीजिए। देयर आर सम मोर वेरिएशंस विद द सिलेक्ट कमांड, but to keep this video simple and short, we are going to cover that variations in the next video. And that wraps up today's video on mastering select command in MySQL. I hope you found this information valuable. Remember to like it if you found this video helpful and do share with your friends. If you have any questions or any topic you would like me to cover in the future videos, leave them in the comments below. In our next video, we are going to take the select command to the next level. Thanks for watching this video. Until next time, stay curious and stay healthy. I will see you in the next video as we continue our MySQL journey together.